hope audibility and visibility is clear, winners. Yes, sir. Yes, sir. So let's take a complete review, quick review of the last lecture. We started with a plant physiology, that is the mechanism of food preparation by green plants, that is photosynthesis. It is the synthesis of food by green plants in the presence of sunlight. And the process is basically anabolic process in which inorganic material converted to organic one, like the minerals converted into the carbohydrate, and the I should say the light energy converted to chemical energy. I hope this statement is perfectly agreed. Yes. Is it? Perfect. विशाल जी, उसके बाद फिर मैंने आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया उसका, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया कि ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय, नॉट आई शुड से डिस्कवर्ड, बट ऑक्सीजन वाज आइडेंटिफाइड इन द नेचर. प्रेजेंस उसका किसने बताया? Joseph Priestley. Joseph Priestley. In the year 1774. 1774. Then who told or who I should interpreted कि sunlight is necessary for the green plants for the photosynthesis? Jan Ingenhousz. Jan Ingenhousz. बहुत बढ़िया. Who told that this preparation, this food preparation of photosynthesis or the carbohydrate formation takes place in the green part of the plant? Von Sack. Okay, perfect. Who told ki, who interpreted it, who explained that the maximum absorption and action is in blue and red light respectively? P.W. Engelmann. And the experiment was, what was the experiment? The simply bacterial suspension. There was an algae, cladophora, in the bacterial suspension, and that bacterial suspension was of aerobic bacteria. So when it is exposed in the sunlight and the light is passed from the prism, then the complete range of Vibgyor, the most of the bacteria were accumulated over that place where the oxygen was releasing, because the bacteria was aerobic bacteria. So that region was under the category of red light spectrum. The overall light spectrum range for photosynthesis is what? Light range? 390 nanometers to 760 nanometers. 390 nanometer to 760 nanometer. Perfect. So ये जो overall range थी, that was of visible light only, and I should say the Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. Agreed? Yes, sir. Perfect. Then we studied a complete equation, and that equation was 6CO2. The equation was 6CO2 plus 12 H2O. Just when I'm taking pen, 6CO2 12 H2O gives C6H12O6 plus 6H2O. C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Is it? Yes, sir. Perfect. Why 12 H2O is needed? Sir, because 12 H2O will be sufficient to produce 6 molecules of Oxygen. Perfect. यानी काफी कुछ चीजें अपने को बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ गई है, और हम आगे अब बढ़ सकते हैं. Then grana, stroma, site, leaf, palisade tissue, mesophyll cells, and whatnot, thylakoid, then 4 complexes, then quantasomes, the chlorophyll. Everything we know, understood very well. Is it, doctor? Is it, winners? Yes, sir. Yes, sir. So मैंने यहाँ लिख रखा था, the next topic was requirement and mechanism. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the exact requirement of the photosynthesis? One by one हमने कुछ requirements लिखी भी थी, और एक requirement हम लोग complete कर चुके थे, that was sunlight. Is it? Yes, sir. This sunlight 390 nanometer to 760 nanometer, and in the range of visible light, which is Vibgyor. Is it? Yes, sir. The second requirement, I should say, the water.
सिंपल एक स्टेटमेंट लिखूंगा और कहानी खत्म हो जाएगी। वाटर की एक रिक्वायरमेंट होती है, सो water in the plants reach to the leaves by which system? Vascular. Osmosis. Matlab this, see, Smera, that was the path. Xylem is definitely vascular bundle is the path, Smera. But the process is what? Osmosis. Or simple osmosis, and definitely after that, if it is the tall or tallest plant or taller plants, then definitely it does require a transpiration pull. This theory we need to understand in the next few classes. Transpiration pull. Simply यहाँ पर ये तो मैं आपको बता ही सकता हूँ, same as breathing. Breathing में जब आप inhale करते थे तो वो negative pressure था कि positive pressure था? Venus? Negative. Negative. बहुत बढ़िया. And the same negative pressure, just imagine that this is the leaf and this is the stem. So if the leaf lamina or the surface is releasing some water molecule in the form of vapors, in the form of gases, then definitely this pressure will be created on this cell, to this cell, to this cell, to this cell, to this cell, and ultimately to the roots. And suddenly a suction pressure will develop, which is the negative hydrostatic pressure, which will sufficient to reach or to deliver the water to the whatever the height is. Understood? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ेंगे अपन डिटेल में कौन सा पुश फोर्स होता है, क्योंकि पॉटेड प्लांट की बात करोगे तो बहुत सारा ट्रांसपिरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुशिंग फोर्स से काम हो जाएगा। रूट का अपना भी तो प्रेशर होता है भाई, तो रूट के प्रेशर से, पॉजिटिव प्रेशर से काम हो जाएगा। But that is for the small heighted plants or potted plants. But in the great height like bamboo trees and palm trees, definitely it does require a pull rather than push, because push is positive, pull is negative. ये ठीक वैसे ही है दोस्तों, जैसे मुझे फर्स्ट फ्लोर पर मम्मी कह रही है कि फर्स्ट फ्लोर पर ग्राउंड फ्लोर से एक बकेट से वाटर मुझे कैरी करना है, और मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है मम्मी आप ऊपर खड़े हो जाओ, मैं पुश करता हूँ, विच इज प्रैक्टिकली टफ। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि मम्मी आप बस नीचे थोड़ा सा पुश कर दो, मैं पुल कर लेता हूँ। व्हाट डू थिंक, व्हाट इज इजी, पुल और पुश? Pull. Pull, definitely pull for the longer distance, but for shorter distance, why it does require a pull? The pushing is sufficient. So water requirement is definitely by transpiration pull, और मैं इसके water को अकेला नहीं कहूंगा, तो मैं कहूंगा ascent of sap. Ascent of sap. सैप में ऐसा होता है जिसमें सॉल्यूट भी होते हैं, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, इसलिए हमेशा सैप कहना कभी भी बेटर होगा बजाय वाटर के। परफेक्ट। द थर्ड वन इज आफ्टर दैट definitely the pigment, definitely a pigment, and there are some pigments. इसका चार्ट मैं आपको बनवा देता हूं बच्चों, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। So let me take my NCERT. उसको और वो करने के बजाय मैं पहले एक और पार्ट छूट गया, उसको मैं बता दूं, फिर मैं लिखवा दूं। The next one is CO2. ये कहां से आएगी? चलेगा? अरे चलेगा? Yes, sir. शौनक भाई, are you there? शौनक? Yes, sir, I'm there. तो थ्रू स्टोमेटा जाएगा, बट क्या ये रेस्पिरेशन है? No, sir. मैंने स्पेसिफाई कर दिया नॉट द रेस्पिरेशन, बिकॉज आई नो यू आर नोइंग दिस फैक्ट, बट फिर भी मैं बता दूं स्टोमेटा से, क्योंकि स्टोमेटा को यूजुअली कहा जाता है गैसेस एक्सचेंज का पार्ट। अब गैसेस एक्सचेंज का पार्ट तो है दोस्तों, लेकिन इस स्टोमेटा से जो CO2 इनटेक किया जा रहा है, दैट इज नॉट रेस्पिरेशन, इट इज जस्ट अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड just for the synthesis of food, and the process is photosynthesis, not the reaction, not the respiration. Agreed? And the fourth one, which is important one, is I think the pigment. And for this purpose, I need to draw a flow chart. Pigments in chloroplast. Pigments in chloroplast. मेरे साथ ही लिखते चलेंगे बच्चों, ताकि क्या मैं बोलता भी चलूंगा और क्लैरिफिकेशन भी होता रहेगा।
there are three major pigments that I'm going to discuss with you all. This is one is chlorophyll. The other one is carotenoid. इस पर बहुत सवाल बनने वाले हैं. सिद्धेश, are you there? मंदार, लीजा, ईशानी, Yes, sir. प्रणव. Yes, sir. Phycobilins. Chlorophyll, carotenoid, phycobilins. Prapti, Manoli, Siddhi, are you there? Yes, sir. Perfect. Chlorophyll का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, उसको टैडपोल स्ट्रक्चर कहते हैं. मैं अभी इमेज आपके साथ शेयर करता हूं. टैडपोल स्ट्रक्चर. वो कैसा टैडपोल स्ट्रक्चर होगा? डेफिनेटली टैडपोल जैसा स्ट्रक्चर यदि मैं बनाना चाहूं तो इट्स लाइक दिस इन शॉर्ट, जिसमें एक हेड होगा, एक टेल होगी. डेफिनेटली टैडपोल का स्ट्रक्चर यदि मैं बना रहा हूं तो मुझे बनानी होगी एक हेड और एक टेल. हेड एंड टेल. जो सवाल नीट के आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, यहीं से शुरुआत होती है. हेड जो होता है उसे पोरफायरिन हेड कहते हैं. पोरफायरिन रिंग होती है. पोरफायरिन रिंग क्या होती है अभी बनवाता हूं आपसे. और टेल जो होती है वो लॉन्चिन फैटी एसिड फाइटॉल टेल होती है. तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है. पोरफायरिन हेड और फाइटॉल टेल. बच्चे फाइटॉल हेड और पोरफायरिन टेल बना देते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है. पहली चीज, पोरफायरिन जो होती है 4 पायरोल रिंग्स होती है. मेरे साथ लिखते चलेंगे. देयर आर 4 पायरोल रिंग्स. 4 पायरोल रिंग्स linked by methine bridge. Linked by methine bridge. That is, I should say, the CH double bond. एक काम करता हूं, पहले आपको स्ट्रक्चर शेयर करूं ताकि आप थोड़ा कुछ समझ पाओगे कि आप लिख क्या रहे हो. जस्ट मिनट. आप नोट कीजिए, तब तक मैं क्लोरोफिल की इमेज शेयर करने का कोशिश करता हूं. ओके. ये ऐसा दिखेगा क्या? बेटर. कैन यू सी द स्ट्रक्चर? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों. थोड़ा सा फोकस करिए स्ट्रक्चर पर, फिर आप लिखिएगा जो भी लिखना है. एक बार समझ लो ताकि मैं बोर्ड पर जो लिख रहा हूं वो आपको समझ में आएगा. अदरवाइज के सर क्या क्या लिखते जा रहे हैं, आप जो बोलोगे तो टीपना है हमें बस. बट यहाँ समझ लेते हैं पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मैं क्लोरोफिल का ऐसा स्ट्रक्चर बताना चाह रहा हूं दोस्तों, जिसमें ये ऊपर का जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस वन इज हेड पार्ट. अभी मैंने कहा ना पोरफायरिन हेड. समझे? Yes, समझे? sir. And the next one is definitely this one is tail part. वो दिख भी रहा है tail की तरह. Is it?
Yes, sir. Yes. तो ये जो पोरफायरिन का स्ट्रक्चर बच्चों आपको दिख रहा है, जिसमें मैंने आपको हेड बताया। अब यहां मैं लिखता चल रहा हूं, मैंने अभी आपको लिखाया कि देयर आर 4 पायरोल रिंग्स। 4 पायरोल रिंग्स आप देख रहे होंगे, चार तरफ से आपको एन 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 आता हुआ दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है। Yes, sir. देखिए बच्चों, क्योंकि मैं आपको वो स्ट्रक्चर बनाने में समय नहीं लगाना चाह रहा, इसलिए आपको कह रहा हूं। यदि ज्यादा बेटर तरीके से आपको देखना है तो राइट हैंड साइड पर एक और स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसमें ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है नाइट्रोजन को। प्लीज चेक। Yes. Is it? Yes. And the central Mg is represented by green color. दिख रहा है? Yes, sir. So I should say there are 4 pyrrole rings. You can check 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Got it, Mishra ji? Yes. आपको ये स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो स्टेटमेंट लर्न करना पड़ेगा जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूं ताकि आपको लर्निंग इजी हो जाए, क्योंकि इमेजिनेशन तब होता है जब आप वो डायग्राम देख लेते हैं। इसलिए मैंने अभी आपसे कहा हेड इज पोरफायरिन हेड एंड टेल इज व्हाट, फाइटोल टेल। वो टेल की बात बाद में करते हैं। यहां पर मैंने आपको लिखा है 4 पायरोल रिंग्स लिंक बाय मिथाइन ब्रिज। अब आपको मिथाइन ब्रिज क्या ही बताऊं मैं आपको, क्योंकि इसमें ना इन्होंने सी लिखा है ना इन्होंने एच लिखा है। जस्ट मिनट बच्चों, तो दूसरी इमेज मॉड्यूल में से सर्च करने में तो और ज्यादा समय चला जाएगा। सर देखकर पता चल रहा है। बट वो मिथाइन ब्रिज में मैं आपको सी और एच बताना चाह रहा हूँ एक्चुअल में। अब वो सी और एच यहाँ पर आप देखें, क्योंकि जहां कॉर्नर में होता है बच्चों, अब वो स्पॉट भी इतना बड़ा लग रहा है ना कि आई शुड यूज पेन। जो रेड कलर का स्पॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पर सी कंसीडर करना है, तो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है वहां पर 2 डॉट लगे हुए रेड कलर से। Yes, sir. Yes. sir. मैं इमेज बाद में बच्चों शेयर कर दूंगा चाहो तो आपसे, ठीक है। एनीवे अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम, कि 4 पायरोल रिंग्स लिंक्ड बाय मिथाइन ब्रिज एंड ईच पायरोल, हर पायरोल को देखिए, ईच पायरोल हैज 5 एटम, जिसमें 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन। अब मैं 4 कार्बन बताने जाऊं आपको तो लाइक 1, 2, 3, 4 एंड बीच में 1 नाइट्रोजन। अंडरस्टूड? Yes. मतलब Yes, मैं देखिए sir. आपको क्या बताया, पहले तो मैं बता रहा हूं आपको ये पोरफायरिन हेड, उस पोरफायरिन हेड में मैंने बताया 1, 2, 3, 4 4 पायरोल रिंग। अब हर एक पायरोल रिंग की बात कर रहा हूं मैं, हर एक इंडिविजुअल जहां पर रेड कलर स्पॉट है वहां पर हर तरह से मैं आपको पायरोल रिंग का एक एक पायरोल रिंग के बारे में बता रहा हूं। तो ईच पायरोल हैज 5 एटम, 5 दिख भी रहे हैं मुझे, 1, 2, 3, 4 और 5, जिसमें 4 तो कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है। अंडरस्टूड? Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. बट शुड आई राइट इट की नाइट्रोजन इज इन सेंटर एंड कार्बन इज ऑन कॉर्नर्स? चलेगा? Yes, Yes, sir. sir. Perfect. Should I pass an statement that this all the nitrogen which are towards center are connected with magnesium? Will it be fine? Yes, sir. Yes, sir. Will it be fine? Perfect. इतना इतना मतलब आपको सिर्फ एक इमेजिनेशन के लिए मैंने बताया, बाकी अपन लिखते समय और यहाँ पर एक भी आएगा जो लास्ट रिंग में बताऊंगा आपको बच्चों। दिस रिंग, दिस वन इज कनेक्टेड थ्रू अ टेल, नीचे की तरफ ये टेल से कनेक्ट होगा। तो कैसे कनेक्ट होगा वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इसलिए Sir? मैंने आपसे शेयर। हाँ बोलिए। सर Mg की तो वैलेंसी +2 रहती है, तो फिर 4 नाइट्रोजन कैसे बॉन्ड होगा उसमें? चारों से नहीं जुड़ना है उसको, 2 से जुड़ना है। ठीक है, आपने 2 तरफ से जुड़ना है। कौन पूछा? मनोली। कौन? सिद्धि मनोली। कौन पूछा? मनोली। आपको 2 तरफ से जुड़े हुए दिखे होंगे मैडम, चारों तरफ से नहीं। सेंटर पे चारों तरफ से नाइट्रोजन आ रहा है, बट मैग्नीशियम 2 तरफ से जुड़ा हुआ दिख रहा होगा। अंडरस्टूड? सर तो फिर बाकी के 2 नाइट्रोजन किससे अटैच्ड है? अटैच करने की जरूरत ही क्या है उसको, उसकी तो अपनी वैलेंसी 3 आपको वैसे भी दिख रही होगी। नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 इधर है और 1 इधर है। शुड आई Yes, sir. शो इट? दिखा? Yes, sir. परफेक्ट। और नाइट्रोजन भी जहां तक मुझे ध्यान है वेरिएबल वैलेंसी दिखा सकता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट। चलिए तो यहां पर स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। 4 पायरोल रिंग्स लिंक्ड बाय मिथाइन ब्रिज
each pyrrole has each pyrrole has 5 atoms, in which that is 4 carbon and 1 nitrogen. Agree? Yes, sir. Agree? Perfect. Yes, sir. Should I write this 4 कार्बन उसके नीचे मैं यहाँ लिख दूं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, डाइजेशन बराबर रहना चाहिए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. अग्रीड? Yes, sir. प्राप्ति, शौनक, नमिशा, मुग्धा, अग्रीड? Yes, sir. परफेक्ट. जहां तक टेल की बात है, फाइटॉल टेल की, दिस इज लॉन्ग चेन अल्कोहलिक, लॉन्ग चेन अल्कोहल. Phytol tail, long chain alcohol. This is phytol. Noted. अब इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं तो यही जो phytol tail है बच्चों, 8 anchors or support, it anchors or support the chlorophyll into लिपिड मेम्ब्रेन. बायोमोलिक्यूल में यदि आपको याद होगा तो एक फॉस्फोलिपिड की लेयर पढ़ी थी आपने. Lecithin. परफेक्ट. कौन बोला? Sir, Om. ओम. बहुत बढ़िया. लेसिथिन वाज द फॉस्फोलिपिड. फाइटॉल टेल है, दिस इज लॉन्ग चेन अल्कोहल, इट एंकर्स और सपोर्ट द क्लोरोफिल इनटू लिपिड मेम्ब्रेन. अब आप समझ रहे हैं क्या बात कर रहा हूं मैं? थाइलाकोइड जो है, थाइलाकोइड की अपनी मेम्ब्रेन होगी, डबल मेम्ब्रेन की सिंगल मेम्ब्रेन? Single member. सिंगल मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड. परफेक्ट. वो जो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, बायोमोलिक्यूल की मेम्ब्रेन है, मतलब बायोस्ट्रक्चर की मेम्ब्रेन है, तो दैट विल बी द लिपिड बाइलेयर, जैसा कि हमेशा होता है. सो दैट लिपिड बाइलेयर में सपोर्ट करने वाला वो पार्ट, वो कौन है? फाइटॉल टेल. उसकी वजह से ही वो वहां पर बाइंड रहता है. लेकिन यहां पर सवाल इतना आसान नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पोरफायरिन हेड एंड फाइटॉल टेल एवरीवन कैन लर्न. सवाल ये पूछा जाएगा यहां पर कि ये जो 4 कार्बन होते हैं, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एवरी पायरोल हैज 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 टोटल. आपको मैंने सारे सब इसमें 4 4 4 4 बताए. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट. अब यदि मैं ऐसा कहूं आपसे कि बीच में वो मिथाइन ब्रिज है, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, हर पायरोल रिंग एक दूसरे से मिथाइन ब्रिज से जुड़ी हुई थी. यस और नो? Yes, sir. परफेक्ट. Yes. तो सवाल यहाँ पर बच्चों पूछा जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बीच में. मैं नोट करके लिख देता हूं. फोर कार्बन नंबर्ड 1 to 8, या इसको इतना लिखने के बजाय जस्ट आपको समझाने के उद्देश्य से लिखूं. क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एज अ डिफरेंस, क्योंकि जो पूछी जाने वाली बात है उसकी बात अपन करें. क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एज अ डिफरेंस दैट at third position, क्लोरोफिल ए में क्या होता है, क्लोरोफिल बी में क्या अटैचमेंट होता है, वो मैं बता दूं. थर्ड पोजीशन पर क्लोरोफाइल एल्डिहाइड ग्रुप होगा at C3, CHO ग्रुप in chlorophyll A, and at chlorophyll B it is given, this is methyl group. Sorry. And this is CHO. अब थर्ड पोजीशन पर कहां पर की मैं बात कर रहा हूं, हर पायरोल रिंग में, ये पहले नोट कर लीजिए आप, मुझे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाना ही पड़ेगा बच्चों, तभी वो नीट का क्वेश्चन सॉल्व होगा. एक्सक्यूज मी सर. यस एक्सक्यूज. सर क्लोरोफिल ए में एल्डिहाइड रहता है कि दूसरा वाला रहता है? क्लोरोफिल ए में मैंने एल्डिहाइड कर दिया और बी में CH3. एक्चुअली गलत लिख दिया था पहले मैंने.
इसलिए मैं कह रहा हूँ डायग्राम एक बार देखा, क्लोरोफिल ए में मिथाइल और क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड एट थर्ड पोजीशन, बट वो थर्ड पोजीशन Okay, क्या sir. है वो मैं आपको जस्ट मिनट बताता हूँ अभी। Noted? Winners noted? Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. I need to take a book. So I should remove a camera. Yes, got it. The perfect image, I got it. Just a minute, बच्चों. Since numbers are given, so it will be far better. अब बताइए, is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए मैंने जो पोजीशंस पे कार्बन बताए हैं, नाइट्रोजन सेंटर की तरफ हुआ, परफेक्ट। नाइट्रोजन जो सेंटर की तरफ हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर देख पा रहे हैं आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 Yes, नंबर sir. देख पा रहे हैं? अरे भाई Yes, दिखा? sir. परफेक्ट। ये जो नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, आप यहां पर हर जगह देख रहे होंगे देयर इज अ मिथाइन ब्रिज। रिंग्स यदि आप देखें देयर आर 4 पायरॉल रिंग्स 1 2 3 4, अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट। Yes, sir. अब 1 2 3 4 में आप देखेंगे तो दिस वन मिथाइन ब्रिज, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. मिथाइन ब्रिज, अंडरस्टूड? मिथाइन ब्रिज, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट। सो 1 2 3 4 जिसे मैंने कहा आपसे, उसमें जो कार्बन चेन से जुड़े मिथाइन ब्रिज वाला कार्बन मैं छोड़ भी दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 नंबर आपको दिख रहे हैं। कार्बन की पोजीशन जो कॉर्नर की तरफ है, परफेक्ट। ये जो 8 कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 कार्बन में यदि आप क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए में डिफरेंस देखें तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है ये क्लोरोफिल ए है या बी, आप मुझे बताएंगे। थर्ड पोजीशन पर हम देखते हैं क्या जुड़ा हुआ है। थर्ड पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? Chlorophyll. CH3। सो यदि थर्ड पोजीशन पर CH3 जुड़ा होगा तो ये मॉलिक्यूल कौन सा होगा दोस्तों? Chlorophyll A. क्लोरोफिल ए। यहीं पर यदि CHO लिखा होता, एल्डिहाइड होता तो कौन सा हो जाता? B. बी। और 2010 या 11, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, 2010 और 11, इन 2010 और 11 देयर इज अ क्वेश्चन कि दिस pyrrole ring and phytol tail, head and tail, this head and tail is connected by, this head and tail is connected, this one is phytol tail लिखा हुआ है, this one is porphyrin head। ये हेड और टेल किससे जुड़े होते हैं या किस नंबर से अटैचमेंट उनका स्टार्ट होता है? तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा और मुझे आप ही को बताना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको, किस पोजीशन से वो अटैच हो रहे हैं? 7. 7. 7 पर। तो दो ही सवाल पूछे जाते हैं, वही मैं आपको लिखाने के लिए बार बार ये स्ट्रक्चर ढूंढ रहा था। दो ही सवाल पूछे जाते हैं बच्चों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान रखें। ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर ऑन दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। नंबर 1 कि हेड क्या है, टेल क्या है, कौन फाइटॉल है और कौन पोरफायरिन है। तो हेड इज पोरफायरिन, टेल इज फाइटॉल। फाइटॉल लॉन्ग चेन अल्कोहल्स हैं और पोरफायरिन जो है उसमें 4 रिंग होती हैं, हर एक में 4 कार्बन होते हैं। सेंटर की तरफ मैं बात करूं तो नाइट्रोजन होता है और कार्बन की काउंटिंग यदि मैं करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और C7 पोजीशन पर हेड जो है वो टेल से ज्वाइन होता है। तो दो ही सवाल पूछे जाने हैं, आप 2 ही सवाल पूछे जाने हैं। रिपीट कर रहा हूं बार बार
हेड पोरफायरिन फाइटॉल टेल एंड बाइंड होने वाला C7, और एक सवाल कि C3 पोजीशन पर यदि एल्डिहाइड होगा तो क्या, और यदि मिथाइल होगा तो क्या। अंडरस्टूड एंड नोटेड ऑल्सो। सर हाँ बोलो। सर वो उन्होंने 1 2 3 4 वो कैसे लिखा है वो समझ में नहीं आया। 1 2 3 4 कैसे लिखा है, देखिए मैं आपको ऐसे समझाऊं क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को। क्या हम ये समझ सकते हैं कि 4 पायरोल रिंग, मिश्रा जी ये क्लियर है आपको? यस सर। चलिए, अब जो एक्सटर्नल कार्बन एटम्स हैं, अपन एक्सटर्नल कार्बन एटम्स की बात करते हैं। अब एक्सटर्नल कार्बन एटम मतलब जहां पर नाइट्रोजन या जिससे जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली वो कार्बन तो अंदर वाला कार्बन हुआ। दैट मीन्स यदि मैं इस कार्बन की बात करूं, ये वाला जिस पर एग्जैक्टली स्पॉट है मेरा, मैं इसे काउंट एक्सटर्नल के तौर पर क्यों करूं? ये इनसाइड है कि मतलब प्रोजेक्टेड इनसाइड है कि आउटसाइड है? ओम इनसाइड। इनसाइड है। बट आप देखिए, व्हाट अबाउट दिस वन? आउटसाइड। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? सर आउटसाइड। आउटसाइड। मतलब जहां 1 और 2 लिखा है ये आउटसाइड है, और सभी में देखो आप, सभी को आउटसाइड वाले को ही प्रोजेक्टेड किया। ये देखिए, दिख रहा है? हाँ सर। उस पायरोल रिंग से बाहर की बात मैं कर रहा हूं, पायरोल रिंग से अंदर की बात नहीं कर रहा हूं। अंदर क्यों मैं नहीं कहना चाह रहा हूं? क्योंकि उससे तो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। समझे कि नहीं ओम? यस सर। तो एक्सटर्नल कार्बन को, इसलिए मैंने 4C के नीचे एक्सटर्नल लिखा, और मैं लिख रहा था 1 to 8। मैं तभी समझ गया था कि बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसीलिए मैं शायद उसको मिटा दिया लिखते लिखते, क्योंकि मैंने कहा मैं बिना डायग्राम के तो आपको ये स्ट्रक्चर बना के नहीं समझा पाऊंगा। सो आई फाउंड दैट स्ट्रक्चर, और ये ऐसे एक्सटर्नल कार्बन को नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 से हेड से टेल जुड़ गया। बराबर ओम? यस सर। सर तो फिर वो आपने बोला था कि 4 कार्बन एक्सटर्नल होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे एक्सटर्नल। कहाँ एक्सटर्नल दिख रहे हैं? अरे भाई पायरोल रिंग देख, पायरोल रिंग के बाहर तो कुछ भी जुड़ सकता है ना उधर पे। अरे यदि तू इसकी बात कर रहा है, इन कार्बन की बात कर रहा है क्या? नहीं सर, वो 1 2 3 4 लिखा है, उसके बाद 5 6 नीचे लिखा है ना। हाँ तो हाँ तो फिर सर आपने बोला 4 एक्सटर्नल कार्बन है, तो फिर वो तो 8 हो गए। अरे 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 4 एक्सटर्नल कार्बन मतलब मैं तो एक रिंग के लिए 4 बोला ना, 4 नहीं दिख रहे हैं तुझे? ओम क्या ही कर रहा है? 1 2 3 4, हर पायरोल में 4 कार्बन है। सर पर वो 4 कार्बन में से जो नाइट्रोजन से अटैच है वो तो इंटरनल हुआ ना, अभी आपने बोला। हाँ अरे भाई, एक पायरोल के लिए कार्बन को और नाइट्रोजन को कहना है तो क्या कहूं? किसको इंटरनल कहूं, किसको एक्सटर्नल कहूं? ओम सर बोलो। नाइट्रोजन को इंटरनल और बस तो यही कार्बन को मैंने कहा एक्सटर्नल। दोस्त, यही मैंने कहा। और उन एक्सटर्नल में, उस एक पायरोल के स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल कार्बन जो है उसके स्पेसिफिक और 2 मोस्ट एक्सटर्नल को नंबर दे दिए गए 1 2। समझा? हाँ सर, आप समझे। ओके परफेक्ट। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस स्ट्रक्चर। विनर्स सर आउट। हाँ बोलो बोलो। सर आपने बोला कि एट थर्ड पोजीशन वो CH3 होगा, लेकिन यहाँ पे हाँ। 5th वाले में भी CH3 दिख रहा है। नहीं तो दैट इज कॉमन, दैट इज कॉमन इन बोथ chlorophyll A and in respect of chlorophyll A and B, Smera, at 5th that is CH3 only. Smera, ओके सर। if मैं क्या बच्चों उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखाना नहीं चाह रहा था आपको, बट फाइन, मैं बोलना भी नहीं चाह रहा था, बट स्टिल मैं इसलिए रुक गया था, थोड़ा लग रहा था मुझे। बट एनीवेज इस लेवल पर मैं आपको यही बताना चाहूंगा दोस्तों, पोरफायरिन, जस्ट मिनट, देखिए बच्चों इस लेवल पर मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो सवाल पूछ इस लेवल पर क्या इवन 12 तक नीट तक यदि आप जाते हैं, केवीपी और एनटीसी तक भी, तो 2 ही 3 सवाल पूछे जाते। नंबर 1 मैं रिक्वायरमेंट बाई वन बाई वन क्लियर करता गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पर बनते हैं, रेंज क्या है, वेवलेंथ क्या है, पहले रेड क्यों, फिर अल्ट्रावायलेट क्या, उसमें क्यों नहीं, ये सब सवाल इस पर बनते। दूसरा इन दोनों पे कोई बहुत सवाल नहीं बनने हैं। चौथा बनता है पिगमेंट पे, तो पिगमेंट में क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड और फाइब्रोबिन, सबसे ज्यादा सवाल क्लोरोफिल। टेटकोल स्ट्रक्चर है क्योंकि हेड और टेल, हेड पोरफायरिन होता है, टेल फाइटोल होता है। 4 पायरोल रिंग बता दी मैंने, सब जो एक दूसरे से मिथाइन ब्रिज से जुड़ी हुई है, दैट वी
see also, saw also in seen in picture also, is it? Winners. Yes, sir. Perfect. अब हर पायरोल रिंग में मैंने 5 एटम बनाए, तो 5 एटम में नाइट्रोजन को मुझे सेंटर कहना था और कार्बन को मुझे एक्सटर्नल कहना। यहाँ तक भी क्लियर है? Yes, sir. परफेक्ट। अब उसमें मैंने क्या किया, जो मोस्ट एक्सटर्नल प्रोजेक्टेड आउटसाइड थे उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 नंबर दे। वैसे देने को यदि मैं सबको देता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16, और फिर शायद मैं आपको कहता कि 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पर या फिफ्थ नंबर पर जो आता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है उसके हिसाब से अपन कहें तो हर पायरोल में 2-2 एक्सटर्नल कार्बन मैंने पकड़े, और जो थर्ड पोजीशन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है यदि वो है तो वो क्लोरोफिल ए, और एल्डिहाइड यदि जुड़ा है तो वो क्लोरोफिल बी। मेरा अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट। और यही मैंने लिखा दिया बच्चों, मैं लिखते लिखते रुक गया था। मैं जब लिख दिया था तब मुझे समझ में आया कि अभी आपको उतना डीप मुझे नहीं ले जाना है। क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। एट थर्ड पोजीशन CH3 यदि होता है तो ए, और CH यदि होता है तो वो बी। क्या यहां तक क्लियर है आप सभी को? Yes. परफेक्ट परफेक्ट। अब बात करते हैं बच्चों कैरोटीनॉइड की। अच्छा, ये एक बात और, यहां पर एक चीज और लिख ली हमने, एट 7th पोजीशन, यस और नो? यस सर। क्या हो रहा है? हेड टू टेल अटैचमेंट एट 7th पोजीशन, यानी C7 पोजीशन पर। ये यदि C3 पोजीशन पर है तो ये C7 पोजीशन पर हेड से टेल का अटैचमेंट है। इतना ही अपने लिए जानना जरूरी है उसकी। परफेक्ट। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए दूसरा स्ट्रक्चर है, दैट इज कैरोटीनॉइड, व्हिच इज लिपिड सॉल्युबल, व्हिच इज लिपिड सॉल्युबल। पहली चीज लिखते चलेंगे साथ में, लिपिड सॉल्युबल है और protect chlorophyll from photoxidation. Protect chlorophyll from photoxidation. अभी जो स्टेटमेंट आया था मिश्रा जी ने पूछा था, protect chlorophyll from photoxidation, therefore called as protective or therefore shield pigment. एक प्रोटेक्टिव है इसलिए उसको प्रोटेक्टिव पिगमेंट या शील्डिंग इफेक्ट उसका शील्ड पिगमेंट कहते हैं उसको। परफेक्ट। जिसमें कुछ भी हो सकता है, कैरोटीन हो सकता है, ज़ेंथोफिल हो सकता है, कैरेट में पाया जाने वाला कैरोटीन हो सकता है, अर्ली लीव्स में पाया जाने वाला ज़ेंथोफिल हो सकता है। ये सब एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। मेन पिगमेंट तो क्लोरोफिल होता है। कैरोटीन की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी फॉर्मूला वाइज पूछ लेते हैं। C40H56 क्लोरोफिल, कैरोटीन की यदि बात करते हैं तो, और ज़ेंथोफिल की बात करते हैं तो दिस इज कैरोटिनॉल, उसमें OH जुड़ जाता है। C40H56 एंड O2 आई थिंक। इसलिए ज़ेंथोफिल को कहते हैं ऑक्सीजन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन, और इसीलिए इसको शायद कैरोटीनॉइड भी कहते हैं, तो भी कुछ एनीवेज जरूरत नहीं है अपने को। द नेक्स्ट वन इज फाइकोबिलीन्स। फाइकोबिलीन जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। फाइकोबिलीन जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है। सिंस strongly bind to protein, therefore called as biliproteins. फाइकोबिलीन का बिली और प्रोटीन्स, सो बिलीप्रोटीन्स जो 3 टाइप के होते हैं और आप लोगों ने पढ़े हैं दोस्तों या सुना होगा डेफिनेटली कहीं। One is phycocyanine. Have you heard about? Yeah, somewhere phycocyanine. Yes, sir. Phycoerythrine और एलोफाइकोसाइनिन।
phycocyanin, phycoerythrin or allophycocyanin. These are the three pigments. That's it. ये पिगमेंट वाली कहानी मैंने आपको रिक्वायरमेंट में सारी कहानी हो गई। सनलाइट में बहुत सारी क्वेश्चंस बने, वाटर में मैंने ऑस्मोसिस आपको बता दिया, पुल बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से जाएगा बट नॉट द रेस्पिरेशन। और पिगमेंट में क्लोरोप्लास्ट में मैंने बता दिया कि 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो क्लोरोफिल होगा डेफिनेटली, व्हिच इज आई शुड से these two accessory, these two are accessory and the chlorophyll is the main one. बच्चों कुछ आया, पिगमेंट आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। परफेक्ट। आगे चैतन्य ने, ईशानी, लीजा, नमिशा, Yes, प्रणव, Sir, चलिए प्लीज नोट दिस। तो मैं आज आता हूं बच्चों, जो सबसे मजेदार पार्ट है, दैट इज नथिंग अदर देन द मैकेनिज्म। और so आज what is the use of phycobilins? पार्डन, So what is the use of phycobilins? क्या होता है बच्चों? सी वी नो दैट, वी मस्ट नो, इनफैक्ट शायद ना पता हो बट हमें पता कर लेना चाहिए, एल्गी इज ओनली द ऑर्गेनिज्म which is classified in almost all the kingdoms except Animalia. Like, आपको मनोली जानकर आश्चर्य होगा, एल्गी मोनेरा भी है। आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पता है? Yes, sir. मोनेरा, प्रोटिस्टा, बोलिए, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। Animal. Monerans, all monerans are prokaryotes. All protistants are eukaryote and unicellular. Fungi, multicellular, saprophyte. Plantae, multicellular, photoautotrough and animalia. तो बच्चों यदि इसमें animalia को मैं छोड़ दूं तो algae are placed in all 4. Like first one is cyanobacteria, blue-green algae is a bacteria, blue-green algae. The second one is protista, the golden algae, desmides. They are the what? Protistants. Algae उसमें भी है। फिर आता है fungi, the lichens. Lichens, the symbiotic association between algae and fungi. And the last one is plantae, blue algae, red algae, green algae, brown algae. ये सब जितने भी है। In fact, you heard about red tides, Red Sea? Have you heard about? Yes sir. Red tides और Red Sea सुना है किसी ने? लाल सागर। Yes, sir. No, sir. yes sir, रेड सी मतलब जस्ट बिकॉज कि वहां पर एल्गी, रेड एल्गी का ब्लू, वहां पर रेड एल्गी बहुत ज्यादा फैल रही है, दैट इज रेड सी। ये रेड, ब्राउन, ग्रीन, ये सारी यूकैरियोटिक एल्गी, ये प्लांटे में कंसीडर की जाती। तो मनोली मैडम, आपको जो सवाल था कि ये फाइकोबिलिन्स क्या करता है, तो अच्छा खासा स्टोरेज मटेरियल होता है इन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक एल्गीज में। मनोली, Yes, sir. Got it. परफेक्ट। चलिए, आई शुड शेयर द इमेज, और आज मैं आपको वो मैकेनिज्म पार्ट क्लियर करूंगा। बच्चों सारे अटेंटिव बैठे, नींद तो नहीं आ रही है किसी को? आ रही हो तो हाँ, स्पष्ट सर। ऑनेस्टली बोलो बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। एनीवन? बोलो भाई, या तो फिर बच्चों नींद यदि किसी को आ रही हो तो बोलोगे नहीं तुम लोग, बट फाइन, थोड़ा सा आंखों को पानी लगा कर आ जाओ। शुड आई इरेज दिस? Yes sir. yes sir, Yes, sir. क्योंकि मैकेनिज्म ही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी फिजियोलॉजी का, प्लांट फिजियोलॉजी। सर, तो फिर फाइकोबिलेंस का प्लांट्स में इतना ज्यादा यूटिलिटी नहीं है। क्या बच्चों? सर, आपने बोला कि फाइकोबिलेंस एल्गी में बहुत यूज आता है, लेकिन तो फिर प्लांट्स में नहीं है।
क्या होता है बच्चों, जो अर्ली लीव्स होती है, हैव यू ऑब्जर्व दैट व्हेन द रोज प्लांट start developing, then very early leaves are a bit reddish or brownish. Have you ever observed? No, sir. Early leaves of rose plants or any of the plant, basically what I observed in rose, the early leaves are a bit reddish or brownish, but as it gets mature, it turns to green. Anyone observed anywhere? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है बच्चों, ये पिगमेंटेशन चेंज होता रहता है इसमें। तो इनिशियल स्टेज में फाइकोबिलीन्स होते हैं, फिर धीरे धीरे क्लोरोफिल में, क्योंकि जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, इन्हें अपना फूड सिंथेसिस खुद से करना है। दे हैव टू परफॉर्म देयर ओन फोटोसिंथेसिस। जब तक वो किड थे या छोटी सी बर्ड के फॉर्म में थे, दे नीड नॉट टू परफॉर्म देयर ओन फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे वर सप्लाइड फ्रॉम सम मैच्योर और ओल्डर लीव्स। स्मेरा, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. इसीलिए ये पिगमेंटेशन चेंज होता रहता है। तो इनिशियली उनके पास स्टोरेज उस फॉर्म में हो सकता है, बट जैसे जैसे वो मैच्योर और ग्रीन लीव्स होती जाएंगी, उनके पास केवल और केवल एक मेजर पिगमेंट बचेगा, एंड दैट इज व्हाट? क्लोरोफिल। स्मेरा, अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट। चलिए, अभी मैं बच्चों आपको जो मैकेनिज्म बताना जा रहा हूं, उसके लिए अभी स्मेरा ने जो सवाल पूछा उससे एक मुझे और याद आ गया। शायद मैं आपको बता चुका हूं, क्लोरोफिल माइनस mg बताया है? नो सर। No, sir. क्लोरोफिल माइनस mg, अभी आपको सेंटर में मैग्नीशियम आयन दिख रहा था वहां पर, इज इट? यस Yes, sir. If you remove this magnesium from the chlorophyll molecule, still one structure remains, and this is another pigment, that is pheophytene. So ये भी एक सवाल पूछा जाता है, chlorophyll minus mg equals to what? That is pheophytene, और उसको लिखते हैं PHE, pheophytene। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसकी जरूरत अभी पड़ेगी अपने। Anyways, should I start with the mechanism? Yes, sir. Yes. पेन डाउन कर दीजिए थोड़ी देर के लिए जब तक मैं आपसे कह रहा हूं। As far as mechanism is concerned, I should say there are only two mechanisms or two steps or two reactions. One is light reaction and one is dark reaction. As soon as sun rises, step समझना बच्चों, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक बार बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस। Light reaction and dark reaction. As soon as sun rises, I should say sun rises. As soon as sun rises, when भी खत्म हो गया। Okay. As soon as sun rises, what I expect? Absorption of light. अब कौन करेगा, क्या करेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सबसे ज्यादा कौन सा होगा? Blue. Blue. Perfect. Then what happens? The second one is what? Photolysis. बिल्कुल बार बार कह रहा हूं बच्चों, 10 मिनट के लिए बस शांति से सुन लो, क्योंकि ये समझ में आ गया तो यकीन मानिए मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, इट्स नॉट आई शुड, मतलब घमंड से नहीं कह रहा हूं, प्राइडफुली कह रहा हूं, बीइंग अ लकी रेजोनाइट्स, प्राउड रेजोनाइट्स, यू आर नोइंग दिस फैक्ट्स इन अ वेरी वेल वर्ड्स। तो बहुत ध्यान से सुनिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द ब्लू, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जैसी वाटर का फोटोलिसिस हुआ, वहां से टूटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, and those electron acceptors are on the thylakoid membrane. There are 4 complexes, PS1, PS2, cytochrome B6F and ATP synthase. So those are the electron carriers. Along with these 4, some more electron carriers are there, like cytochromes. Those pass the electrons to the next one, to the next one, to the next one, and during this process they generate energy. Therefore this light reaction is known as एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस, और वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस और स्टेप।
अच्छे अच्छे धुरंधर इसको रट लेते हैं बस कि समझ नहीं आ रहा है भाई किसके बाद क्या हो रहा, समझ ही नहीं पड़ रहा। पहले सनराइज होने के बाद पानी टूट रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है कि पहले एटीपी बन रहा है कि कार्बन रिड्यूस हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सनराइज इज लाइट एब्जॉर्ब, वाटर ब्रेकडाउन, एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस। नाउ आफ्टर photolysis of water, how energy is generated, a big question mark. I'm explaining this mechanism only. That means today itself I'm telling you how energy is generated in a light reaction, why this light reaction steps are known as light harvesting. Light harvesting, why these are light harvesting, बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। ये सारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं दे रहा हूं। Whatever energy will be generated, this energy will definitely be used in dark reaction where CO2 will be reduced. CO2 will be reduced to carbohydrates. So should I say this dark reaction is energy consuming process? Will it be fine, winners? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So पूरा फोकस कर दीजिए, सब छोड़ दीजिए कौशिकी मैडम। कौशिकी आर यू देयर? Yes, sir. Perfect. सब छोड़ दीजिए बच्चों, मैं सिर्फ एक थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन बताकर आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। सो जस्ट बिलीव मी एंड बिलीव योरसेल्फ। इतना भी टफ नहीं जितना लोगों ने उसे बना रखा है, बट स्टिल हमारे लिए समझना ज्यादा जरूरी है। दिस इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर व्हिच इज, आई शुड राइट हियर, the thylakoid. This thylakoid structure, there are 4 complexes. There were 4 complexes on thylakoid, yes or no? Yes. Yes, sir. First complex, Urvi, first complex I am trying to write here, PS2. That means photosystem 2. Photosystem 2. The one more I am writing here, this is cytochrome B6F. And the third one I am writing here, this is PS1. That means photosystem 1. And the fourth I am writing here, just to explain in a funny way, I'm writing in this such a way. Otherwise, वो मतलब ये तो हर जगह पर है ऐसे, ये तो पूरा lollipop structure is everywhere. Smira, you have some doubt? Sir, please adjust your camera a little. Okay. Yes, sir. Perfect. Yes. Perfect. So, Yes, sir. okay, fine. So these are the 4 complexes. These are PS2, cytochrome B6F, and PS1, and this is thylakoid, right, students? ये जो thylakoid की membrane है, and it is the 4th complex. This 4th complex is ATP synthase. ATP synthase. Perfect. PS2, cytochrome B6F, PS1, and ATP synthase. These were the 4 complexes only that I told you during the site of photosynthesis. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now, this is, if this is the thylakoid membrane, then I can understood you know that there is a chloroplast. These are the thylakoids. These are the thylakoids, and these are the stromal lamellae. Understood? फटाफट बोलो बच्चों, understood? Yes, sir. So what I draw, this simple structure that I draw, this one thylakoid. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes. So I should write here, this is the stroma. Agree? Yes, Yes. sir. Yes, sir. So I should write, this is the lumen of thylakoid, and this one is the stroma. Agree? Yes. Yes, sir.
फटाफट बोलते चलो, क्योंकि सब मैं बिल्कुल क्लियर आपसे पूछ के कर रहा हूँ. आउटसाइड पार्ट इज स्ट्रोमा, दिस इज थाइलाकाइड, आउटसाइड पार्ट इज स्ट्रोमा, इनसाइड पार्ट इज lumen, थाइलाकाइड lumen. Agree? Yes, sir. Yes. So if I'm telling you that this is the lumen part, then can you expect that this will produce, this water will break down into the lumen. जैसे ही पानी टूटेगा, by the breakdown of water, there will be 4H plus 4 electrons. समझना बात को, 4H plus 4 electrons और एक साथ में O2. अब मैंने इसको 4 कर दिया, तो I should write the 2H2. Understood? Yes, sir. Yes. Yes, Yes. sir. This will break down. This oxygen will release as a prana vayu. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए कहते हैं कि प्लांट, why they are great creature of nature, वो अपना फूड सिंथेसाइज करे या ना करें, बट वो आपके लिए प्राण वायु तो छोड़ ही देते हैं. एज सून एज सन राइजेस. कनेक्ट करते चलना. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट एब्जॉर्ब हो गया. लाइट कहाँ एब्जॉर्ब होता है वो भी मैंने बता दिया. थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन पर होता है. थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन पे 4 चतुर चालाक, मैं तो 4 चोर कहता हूं, 4 चतुर चालाक बैठे हुए हैं. ये 4 चतुर चालाक मिलकर कैसे वाटर मॉलिक्यूल को फंसा रहे हैं, कैसे थाइलाकाइड को फंसा रहे हैं, वो बड़े फनी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. So these 4 chatur chalak, when water is breaking down or photolyzed in the presence of sunlight, then it will produce 4 protons, 4 electrons and oxygen. This oxygen will release as a pranavayu for animals. Those electrons are received by photosystem 2. Those electrons are received by photosystem 2, for which it was waiting. Why it was waiting? PS2 activates on P680 nanometer. This is the one complex that get activated at P680 nanometer. And this electrons move into the excited state. Electron transport chain mein it is received, suppose X will electrons will receive by Y will, the electrons of Y will receive by Z, whatever it is. So the electron get excited state from this photosystem, and these are the electrons which are generated by the photolysis of water. Understood? Yes, sir. Perfect. Can you please explain the Yes. PS2? Yes. Repeating Okay. again, no problem. Repeating again. Sun rises. When the sun rises, simply the sunlight will be absorbed. Smira, yes or no? Yes, sir. When it will be absorbed, water will be photolized. Yes or no? Yes, sir. When water will be photolized, then oxygen will be released as a pranavayu. Yes or no? Yes, sir. Those electrons will be received by one of the 4 chatur chalak or one of the 4 complexes on the thylakoid membrane. Yes or no? Yes, sir. Those electrons will be move into excited state, क्योंकि और अभी एनर्जी और मिल रही है, तो यहाँ से excited state में जाएगा. Yes or no? So energy और क्यों मिल रही है? एनर्जी क्या बोले? एनर्जी आपने बोला कि और मिल रही है, कैसे मिल रही है? एक्साइटेड स्टेट में क्यों जाएगा? मैंने आपसे कल भी कहा था, जस्ट इमेजिन अ डिश एंटीना. क्या आपको लगता है कि पूरी सरफेस की हीट इतनी नहीं बढ़ जाएगी कि आपको थोड़ा सा हॉट प्लेट की तरह लगने लगेगा वो? हाँ, यस सर. They are like a dish antenna, na, Smira madam? Okay, sir. Agree? Perfect. So the electron will move into excited state, will be received by X, will be received by Y, will be received by Z, and will continue. This is electron transport chain. And the best electron transporters are cytochromes. Understood? Yes, sir. Perfect. So this PS1, PS2 ultimately give to cytochrome to PS1, and ये इनका तीनों का गणित चलता रहता है. चौथा अभी उससे अनटच्ड है. ये इसको देगा, ये इसको देगा, फिर ये चलता ही रहेगा. ये साइक्लिक मोड में चलता ही रहेगा. वाटर विल बी ब्रेक डाउन. हर बार पानी टूटता रहेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देता रहेगा, ये इससे साइकिल में चलता रहेगा. क्या ये समझ गए आप बराबर? Yes. Yes, सर आप sir. इलेक्ट्रॉन किससे किसको मिलते वो वापस एक बार बता सकते? शौनक, मैंने आपसे कहा PS2 ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, यहां तक समझ में आया? यस सर. परफेक्ट.
तो जो PS2 से समझ, PS2 के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, दोस PS2 इलेक्ट्रॉन्स will move into excited state. Agreed? Yes, sir. Will recede by any X element, will recede by any Y element. वो तो ठीक वैसा ही खेल चल रहा है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जो मैंने आपसे कहा था कि एक हम बढ़िया घर में सारे फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, म्यूजिक लगा दिया और पिलो को पास ऑन कर रहे हैं एक। अंडरस्टूड? Yes, sir. समझ में आ गया. रौनक उसमें क्या है, म्यूजिक ऑन किया, एक पिलो मेरे पास था, मैंने आपके पास पास ऑन किया, आपने नेक्स्ट को पास ऑन किया, उसने नेक्स्ट को पास ऑन किया. दिस इज द प्ले. इज इट? Yes, sir. If this pillow I am considering as electron, so should I say it electron transport chain? Is it? Yes, sir. But every time when I am giving those pillow or those electrons to the next one is getting reduced and I am getting oxidized. Is it? Yes, sir. Yes. Yes. Because since I am giving the electrons, I myself oxidize and the next one is reduced. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And the next, Sir. then the next will when pass it on to the next, then the second one will be oxidized and the third one will be reduced. Yes or no? Yes, sir. This redox reaction will proceed. This redox will continue. This redox. Yes, Om, बोलिए. सर लेकिन वो खुद के इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहे ना, वो तो बस ट्रांसपोर्ट कर रहा है. तो मैंने भी तो खेल में यही किया था. मेरे पास कौन सा मेरा पिलो था, मुझे तो जो आया था वो पास ऑन कर दिया मैंने कौन अपना किया. सर लेकिन वो ऑक्सीडेशन में तो खुद के इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं. अरे तो लिया था जब मैंने किसी के लिए थे, तब मैं क्या हुआ था, मैंने ले लिया तो रिड्यूस कर दिया, और अब देते समय ऑक्सीडाइज नहीं करोगे मुझे. ओम, करेंगे. रिड्यूस तुम एक पार्ट पर सोच रहे हो यार, ले लिया तो रिड्यूस करवा रहे हो, तो दोगे तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा वो. अग्री? होगा सर. चलिए परफेक्ट. अब क्या हुआ बच्चों, जब ये पहुंचता है यहाँ पर, जो भी हो XYZ, अपन उसमें वो बाद में समझेंगे कि वो कौन कौन है, वो तो सिर्फ पास ऑन का खेल खेल रहे हैं. उसके बाद क्या होता है, उनका एनर्जी वो दे देते हैं PS1 को. PS1 एक्टिवेट होता है P700 पर. अब सवाल उठता है कि ये PS1 को क्यों दे देते हैं, क्योंकि इन चतुर चालाक के बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि PS2 के पास एक एंजाइम नहीं है, and that enzyme is present to PS1, and this is NADP reductase. समझना थोड़ा, पहले सुनो फिर क्वेश्चन को जनरेट करना. NADP reductase. There is an enzyme that can reduce a substance like NADP by utilizing the proton from the stroma. पहले समझना है, सवाल बहुत सारे आएंगे लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करो. Let me finish my statement. The electrons from PS2 given to the XYZ, whatever it is, given to the PS1. Why it is given to the PS1? Because PS1 which is P700, उस P700 के पास एक ऐसा एंजाइम है जिसे आप NADP reductase कहते हैं. एक ऐसा एंजाइम है जिसे आप NADP reductase कहते हैं, जो स्ट्रोमा के प्रोटॉन को यूटिलाइज करके, PS1 स्ट्रोमा के H+ को यूटिलाइज करके NADP H2 बना सकता है. वो ऐसा क्यों कर रहा है वो बाद में समझते हैं, पहले क्या कर रहे हैं ये समझ लिया. Electrons that are started from 680, which is actually the photolysis of water. वो इलेक्ट्रॉन किसके थे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के इलेक्ट्रॉन्स थे. Those electrons ultimately given to PS1, and that PS1 reduces the stromal NADP, which is a high energy phosphate molecule, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, by receiving H+ from stroma converted into NADPH2. And ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये चतुर चालाक चारों मिलकर बाहर का स्ट्रोमा का H+ कम करने पे लगे. चारों मिलकर स्ट्रोमा का H+ कम करने में लगे हैं, so that by default ल्यूमेन का H+ बढ़ता जाए. So that by default H+ का ल्यूमेन में concentration बढ़ता जाए.
अब उसमें इसका और इसका रोल तो समझ में आया कि इसने यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स उठा लिए तो बाय डिफॉल्ट H प्लस बढ़ गया, इसने ये PS1 को दे दिए और PS1 ने अंदर न बढ़ा पा रहा था तो बाहर के H प्लस कम कर दिया, उसको लेकर इसको रिड्यूस कर दिया, यानी इसने स्ट्रोमा के H प्लस को कम किया और इसने ल्यूमेन के H प्लस को बढ़ाया। और साइटोक्रोम B6F एक ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो सीधे H प्लस को प्रोटॉन स्ट्रोमा से ल्यूमेन में ट्रांसपोर्ट कर सकता है with the help of some carrier proteins. Repeating my statement और धीरे धीरे बोलता हूं। As the sun rises, water breakdown, photolysis of water. This electron protons are in equal concentration. Electrons are uptaken by PS2, enters into electron transport chain, ultimately given to the PS1, because PS2, PS1 and cytochrome B6F, all these three want to decrease the H plus concentration in stroma and increase the H plus concentration in lumen, so that there will be a gradient. There will be a gradient that develops between lumen to stroma. और जब यहाँ H plus ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो pH will be fall. और जैसे ही एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, ये मेम्ब्रेन काम करना बंद करेगी, सो H plus बाहर भेजना ही पड़ेगा और बाहर H plus निकल नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि thylakoid membrane is impermeable to H plus ions. So only the way they left, only the option they have to move H plus through this fourth complex, and when this H plus moves outside from this complex, there is an fourth complex. ये कह रहा है मैं तभी जाने दूंगा जब आप ATP सिंथेसिस कर दोगे, और इसीलिए यहां पर बन जाता है ATP with the help of adenosine diphosphate and IP. कुछ समझे क्या बच्चों की नहीं समझे? सर